guys, it's Ria. So I'm at Qatar National Library right now. This is my favorite place so far. And today we have a very special guest. His name is Nihal, and he's a very famous TikToker, and he also helps people finding jobs. Because of his good nature, we are here to interview him today, and let's find out why he is so helpful to people and why he's helping people finding jobs. Thank you. Assalamu alaikum everyone, those who are watching from Qatar and everywhere. I would like to say thanks for watching, and I hope please continue this video without skipping. It will be a very motivational video. And before starting the story, I would like to say thanks to the TikTok vlogger Miss Ria. Thank you so much for inviting me here. Okay, Mr. Nehal, thank you so much for coming. And can we know about your journey, please? Yeah, sure. Actually, I came here in Qatar 5 years ago. So when I came here in the private company, I came in a private company. I worked for only 6 months, only 6 months. And after 6 months, the company got shut down. So I have to go travel back to my country, India, and I was in a big problem where no one helped me. Okay, Nehal, I'm so sorry you had to go back to your home country within 6 months. So can we hear like your struggles, what you had to face within those 6 months? Actually, when I went back, only of coming here after 6 months, so many questions came towards me from my friends and from my family, from everyone. Everyone was telling, oh, he was very confident before we were going to Qatar, and he came back in 6 months. He can't do anything, he can't do job, he can only sit in the home, he can only play cricket, he can only roam with the friends. So this was the first questions which came towards me, which make me very depressed. But within 15 to 20 days, I overcome from the depression, and then I came back to Qatar after 2 months again. But after coming here, it was another very sad story with me for next 2 months. It was a hell of a life. You know, if I try to explain also, people will start try crying. It is very sad story. So Nihal, आपने बोला था after staying in your home country जहाँ आप 2 महीने रुके थे, after 2 months you came here, then for 2 months it was very hard journey for you. So आप बता सकते हो क्या हुआ था? How many interviews you had to attend? आपके पास कितने पैसे थे उस वक्त survive करने के लिए? खाना क्या था? We want to know everything. तो मैं आपको पहले ही बताया था कि हेल ऑफ ए लाइफ. हेल इसलिए बोलना नहीं चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह हर सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ थी. हेल इसलिए निकला है वर्ड्स ज़बान से मेरे कि जब मैं इधर वापस आया था ना, आने के बाद मेरे पास सिंगल रियाल भी नहीं था. मैं घर से बैंक से लोन लेके आया था, लोन लेके वापस आया था. और आने के बाद जॉब ढूंढना कतर में इजी तो था, बट मैं मेरे एजुकेशन के हिसाब से एक अच्छी जॉब ढूंढना चाहता था. क्योंकि जब प्रीवियसली क्या हुआ था, जॉब पे ही आया था, जॉब वीज़े पे, फिर भी मेरा लॉस हो गया है. 6 मंथ्स जॉब किया, कुछ सैलरी नहीं मिली थी मुझे. तो मैं सोचा था एक ऐसी जॉब हासिल करता हूँ, ऐसी जॉब हासिल करता हूँ इसमें फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो. सो सर्वाइव की बात अगर मैं करूं तो इतना बुरा सर्वाइव किया कि आप सोच भी नहीं सकते और लोग यकीन भी नहीं करेंगे. So निहाल, आपने बोला लाइक सोच भी नहीं सकता ऐसा जर्नी था, तो आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्या हुआ था आपके साथ? मैं इसलिए ऐसा बोला था कि यहाँ पर आने के बाद इधर रहने के लिए मिनिमम 1000 कतर रियाल चाहिए. मतलब इंडियन मनी 22,000. 1000 रियाल मतलब 22,000 रुपये इंडिया के हो रहे हमारे. तो मेरे पास कुछ नहीं था. फिर भी मैं इधर से उधर से एडजस्ट करके रूम रेंट 1 महीने के लिए सेट कर सका अरेंज. और मेरे रूम में 8 बंदे रहते थे, और मुझे आदत नहीं थी 8 बंदों के साथ रहने की पहली बार. और 7-8 बंदों के साथ रहना इट्स नॉट इट ऑल ईजी. फिर भी मैं सर्वाइव किया उसमें अल्हम्दुलिल्लाह. उधर भी खुश था, ऐसा नहीं है कि मैं बुरा था, नहीं बुरा हूँ, बट खाने का मसला हो गया था. 1 महीने के बाद क्या हुआ, जो मैं पैसे इधर से उधर से अरेंज किया वो भी ख़त्म हो गए. अभी नेक्स्ट मंथ सर्वाइव करना है. 10-15 इंटरव्यू दे के आया था, जहाँ पर भी जा रहा हूँ 1500 रियाल 2000 रियाल सैलरी बोल रहे हैं. इसमें मैं सोचा इतनी दूर आके इतना वीज़ा लेके आके फिर वही 2000 में क्यों काम करूँ. तो मैं कुछ अच्छे पोस्ट के लिए वेट कर रहा था. इसमें क्या हो गया, 1 महीने के बाद जब पैसा ख़त्म हुआ तब मुझे लेबर काम करना पड़ा. विल यू मी मास्टर्स कंप्लीट करके आके मैं इधर लेबर काम किया. तुम यकीन कर सकते हो. अच्छा निहाल, आपने अभी भी मेंशन किया आपने मास्टर्स कंप्लीट जी करके आए थे आप, फिर भी इट वाज वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट जॉब इन हियर. हाँ, हार्ड नहीं था, जॉब नहीं मिल रही थी ऐसा नहीं बोला मैं. जॉब्स बहुत मिल रहे थे. 10-15 इंटरव्यू फेस किया था 1 महीने में, उसमें 10 बार पास भी हो गया था. बस जो ऑफ़र लेटर्स आ रहे थे वो मेरे एजुकेशन के हिसाब से मुझे पसंद नहीं आ रही थी. इसकी वजह से मैंने क्या किया, नेक्स्ट मंथ भी मैंने डिसाइड किया 1 महीना और खाली बैठूंगा, मुश्किल नहीं है, सर्वाइव करूंगा. इसके लिए मैंने जाके लेबर काम किया, जहाँ पर एक मेरा फ्रेंड इंजीनियर था, वो मुझे हेल्प किया कि वो बोला
मेरे पास एक काम है बट वो लेबर का है, आपको सीमेंट उठाना पड़ेगा, आपको क्या बोलते हैं ईंट उठाना पड़ेगा, आपको फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक सामान उठा के जाना पड़ेगा, क्या तू कर सकता है। तो आपने जब ये मास्टर्स कंप्लीट कर चुके थे, इट माइट बी वेरी हार्ड फॉर यू टू एक्सेप्ट नो वो काम करने के लिए। आई अंडरस्टैंड कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बट इट माइट हैव टेकन यू यू नो सम मूवमेंट टू एडजस्ट योरसेल्फ। सही, आपका क्वेश्चन सही है, तकलीफ़ तो हुई थी बट मैं इधर इंडिया में जब मैं पढ़ाई कर रहा था इंटर डिग्री से ही मुझे आदत है हार्ड वर्क करने का, क्योंकि मैं काम करते हुए पढ़ा था। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं इंडिया से शानो शौकत से आया हूँ, मैं इधर ये काम नहीं करूँगा। कोई भी अभी आप नहीं बताया है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, तो मैं वही सोच के वही कॉन्सेप्ट पे फ्लो में चला गया था। ओके, फर्स्ट 2-3 डेज इट्स वॉज वेरी हार्ड बिकॉज इधर टेम्परेचर कितना गर्मी है आपको मालूम है। मेरे नाक से ब्लीडिंग हो रहा था, 2-3 दिन बहुत पछताया मैं, बहुत तड़पा, बट उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप हो गया। उधर 1 महीना काम करने की वजह से इतना बैकअप मिला मुझे, किसी के पास पैसा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ा। मैं 4-5 लोग अपने जो खास है इधर वो लोग के पास पैसा पूछा था बट कोई हेल्प नहीं किया मेरा। पर उधर काम करने के बाद आपको पता भी चला होगा इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। आपने देखा होगा कैसे लाइफ लाइक पीपल हाउ हार्ड दे वर्क। उधर काम करने के बाद मुझे ये पता चला, मैं तो जब यंगस्टर था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह यंगस्टर हूँ, बट जब मैं देख रहा था 56-60 साल के लोग वो काम कर रहे हैं तो मुझे रोना आता था यार। मैं काम कर रहा हूँ इसके लिए रोना नहीं आया मुझे, बट जब देखता था वो बंदा धूप में कितने बॉटल पानी पी रहे हैं, और आपको मालूम है हम लोग चिकन 65 मटन ये मंदी खा रहे हैं, वो लोग पानी में खबूस आपको मालूम होगा ना, खबूस पानी में मिला के वही खाते हैं। 4 खबूस लाते हैं, सुबह 2, दोपहर में 2 खा के। लाइक कितने आवर्स ड्यूटी किया आपने उस टाइम? मैं उसमें ओवर टाइम भी रहता था, एक्चुअली 9 आवर्स है एज़ पर द रूल्स। उसके बाद ओवर टाइम भी मिलता था, मैं 10-12 घंटे करता था, और जब जिस दिन इंटरव्यू रहता था ना परमिशन लेके जाता था 4-5 घंटे के लिए, फिर वापस आता। और इंटरव्यू को जाने के लिए मेरे पास ना मेट्रो कार्ड था तभी, ना बस कार्ड, तो मैं जो भी पैसे इससे मिलते थे, जो करीब में जो लगता है मतलब जो इंटरव्यू को जाने के लिए वहाँ तक टैक्सी बुक करके जाता था, फिर वहाँ से बाई वॉक जाता था। अच्छा, सो आपने लगभग कितने इंटरव्यू दिए होंगे? ऑलमोस्ट मुझे याद है 25th इंटरव्यू वॉज सक्सेसफुल इंटरव्यू फॉर मी, बिकॉज वो कंपनी जो अभी प्रेजेंटली मैं काम कर रहा हूँ, कंपनी का नाम मैंने इंक्वायरी किया, बहुत अच्छा कंपनी है, ऑन टाइम सैलरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है उधर कंपनी का भी, और जहाँ जो कैंडिडेट्स उधर काम करते हैं उनका भी, और मुझे पैसा मिला भी। मैं जो सोच के गया था उसके बाद वो मेरी कंपनी ने मुझे फीफा वर्ल्ड कप के लिए रिलीज़ किया, एशियन कप के लिए रिलीज़ किया, जहाँ पर आप सब ने वीडियोस देखे हैं, उधर से ही तो मैं वायरल हुआ था। तो सब कंपनी का बहुत सपोर्ट मिला, तो इतना सब्र करने के बाद मुझे फल मिला, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ओके, गुड। सो जब अभी तो आपका स्टोरी फाइन है ना, लाइक यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, आपके पास अच्छा जॉब है, आप कंटेंट बनाते हो, आप टिकटॉक वीडियोस डालते हो। उस वक्त और अब में क्या डिफरेंस है? उस वक्त और अब में डिफरेंस ये है कि अभी सुकून की लाइफ है, जब ये स्ट्रगल की लाइफ थी, अभी सुकून की लाइफ है। सुकून की लाइफ इसलिए है कि मैं स्ट्रगल किया। अब आजकल के नौजवान जो क्या करते हैं मालूम है, आते हैं गल्फ़ को, कतर हो, कोई भी गल्फ़ कंट्री हो, वो लोग आते हैं। आने के बाद ये लोग क्या करते हैं, 1 महीना सर्वाइव करते हैं, और ये लोग पैसा भी लेके आते हैं साथ में, माँ बाप 1 महीना 2 महीने का पैसा दे के भेजते हैं। इधर आके ये लोग क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कैसा कर रहे हैं, दिन भर रूम में सो रहे हैं धूप से डर के, शाम को इंटरव्यू के लिए आएंगे। कभी भी याद रख लो, शाम को इंटरव्यू जाओगे तो जॉब नहीं मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock को उठो, 7 o'clock को उठो एटलीस्ट, उसके बाद आप जाओ। जॉब नहीं मिली तो जब इंटरव्यू पूरा दिन घूमो। अच्छा, इसलिए आप वो जॉब के वैकेंसीज व रिलेटेड वीडियोस डालते हो टिकटॉक में, इवन यू रेस्पॉन्ड टू पीपल्स, यू हेल्प देम फाइंडिंग जॉब। दिस इज़ द रीज़न बिकॉज यू हैड स्ट्रगल्ड अ लॉट फाइंडिंग जॉब, सो इसलिए आप दूसरे का दुख समझते हो। सही बात है, आपने पॉइंट सही बोली, अच्छा पकड़ा है पॉइंट को। वही रीज़न है, क्योंकि जब मैं जॉब सर्च कर रहा था मुझे कोई बता रहा था कि निहाल कतर लिविंग पे इधर जॉब मिलता है, ये साइट देखो, लिंक्डइन देखो, इसमें देखो, गर्लफ्रेंड्स में देखो, ये किसी ने नहीं बताया है। बस बोलते थे कुछ, अगर मैसेज आया तो फॉरवर्ड करते थे, इधर ट्राई कर उधर ट्राई कर, कोई हेल्प नहीं किया है। तो मुझे मालूम है अगर हम थोड़ी सी हेल्प करेंगे, मैं एटलीस्ट 1000 पीपल्स को मैं एक मैसेज भेजूँगा, उसमें से एक भी बंदा सेलेक्ट हो जाएगा तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। वो दुआ लाइफ लॉन्ग जब तक जॉब पे रहेगा मेरे लिए दुआ करेगा, इसके लिए मैं हेल्प करता हूँ लोगों की। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते थे पहले, यू नो लाइक क्या पूछा जाता था? लाइक आपके पास तो एजुकेशन था, मे बी एक्सपीरियंस भी आपके पास था इंडिया से, अगर नहीं भी होता तो एजुकेशन तो था, तो किस चीज़ में आपको सैलरी कम मिलता था? सैलरी कम होने की वजह था इंडिया का मेरे पास 6 साल एक्सपीरियंस था। वो इधर क्या गल्फ़ में क्या है, इंडिया का एक्सपीरियंस ज़्यादा देखते नहीं। गल्फ़ एक्सपीरियंस, हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव इन गल्फ़,
आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द गल्फ। आपके पास वो है तो एजुकेशन से बड़ा वेपन है। वो ध्यान से याद रखिए जो भी ये वीडियो देखें। अच्छा, तो आप क्या रिकमेंड करना चाहते हो जो भी गल्फ आ रहे हैं? एवरीवन कम्स इन द यंग एज, राइट? यस। तो क्या रिकमेंड करना चाहते हो? मैं बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ, जब भी आप इधर पहले कदम रखोगे, अपने माँ बाप और आप इतनी दूर आने की वजह क्या है उसको दिमाग में रख के जॉब सर्च करिए। ऑन मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मेल्स डालिए, बाहर जाके आप जॉब सर्च करिए, हर जगह अपनी एटलीस्ट 100-200 सीवीज़ अपने पास रखिए। ऐसा नहीं है कि मैं 10 सीवीज़ भेजा, मैं 15-20 मेल किया दिन में, कुछ रिप्लाई नहीं आएगा यार। 100 मेल करो, रिप्लाई नहीं आएगा, 101 तो आएगा ना। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे जॉब नहीं मिलेगी। आप घर पे बैठ के मैं 15 मेल किया, मैं 20 मेल किया, जॉब नहीं मिली, मैं 10 जगह इंटरव्यू किया, जॉब नहीं मिली। सर्वाइव करना सीखो। जितना पेशेंस सब्र आपके पास रहेगा उतने में ही आपको जॉब मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कितना हाउ मच शुड समवन अर्न एट द स्टार्टिंग फेज टू सर्वाइव इन कतार? मुझे लगता है डिपेंड करता है अपने सिचुएशन पे। अगर वो फ्रेशर है तो आई थिंक इट विल बी बेस्ट 2500 ऑल्सो गुड। 2000 2500 एजुकेटेड फ्रेशर है, एजुकेटेड। इफ ही इज ए लेबर और टेक्नीशियन 1500 ऑल्सो गुड फॉर सर्वाइविंग इन कतर एज वेल एज एवरी इन हिज होम कंट्री ऑल्सो। बिकॉज वो पैसा इधर तो उसको 1500 के साथ एकोमोडेशन भी मिलेगा सेपरेटली अलग से, खाना भी मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगा, तो इधर तो वो सर्वाइव हो रहा है। बाकी के 1500-2000 में वो इंडिया में या पाकिस्तान, नेपाल किधर का भी हो, उधर वो लोग भी सर्वाइव हो जाएंगे। अच्छा, 2500 you said? 2500 कतर रियाल। 25 is a good money in Qatar? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, for the starting phase? For a fresher. Okay. So what do you think? So अभी because आपका पहला salary, we heard about your salary at the first. What was it? 2000? First salary it was 2200. 2000. अभी आप कितने earn कर सकते हैं अगर आप बता सकते हो तो? क्वेश्चन तो अच्छा है, बट आई एम सॉरी आई कांट टेल, Okay. बट अल्हम्दुलिल्लाह Okay. बेटर देन दैट, मोर देन दैट। अच्छा। आई एम सर्वाइविंग हियर रॉयली एंड माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली आल्सो सर्वाइविंग देयर रॉयली। और मैं कभी भी ये कहना चाहता हूँ कि ओके अभी हमें जॉब भी मिल गई तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी कंपनी में हम परमानेंट नहीं है। जब अगर आप परमानेंट कंपनी में जब ही होगे जब कंपनी के लिए आप कुछ करोगे। फर्स्ट आपको नाम कमाना होगा कंपनी में ऐसा काम करो कि मेरा जैसा अपना घर है, अपनी कंपनी को अपना समझ के काम करो। ऐसा नहीं है कि मुझे महीने में सैलरी मिल रही है, मेरा 8 घंटा की ड्यूटी है, मेरा 9 घंटा की ड्यूटी है, 9 घंटे के बाद मैं चेकआउट करके जाऊँगा, कुछ भी काम है नेक्स्ट डे करूँगा। ऐसा नहीं, काम है, काम कंप्लीट करके जाओ, मैनेजर का दिल जीतो, अपने मैनेजमेंट का दिल जीतो, उसके बाद आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, उसके बाद आप और कमाओगे, वरना आप कभी भी फायर हो सकते हो। अच्छा, ठीक है। तो आप ये बताओ, तो जब कोई अपने कंट्री से जो भी कंट्री जाना चाहे इंटरनेशनली, सो डू यू थिंक एक्सपीरियंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग समवन शुड हैव बिफोर लिविंग देयर कंट्री? Yes, experience is the weapon. Before you are leaving your country for traveling for girl, for anywhere, experience is the key. Without experience you can't survive. ओके, सो एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। ऐसा मत करो, देखो जो भी आना चाहते हैं ऐसा मत करो कि अंधाधुंध मत भाग के आ जाओ कि मैं उधर जाऊंगा। इधर गल्फ़ में पैसा झाड़ को लगा हुआ नहीं रहता है। लोग समझते हैं हमारे कंट्रीज़ में कि गल्फ़ जाते ही पैसा मिलेगा, झाड़ को लगा हुआ पैसा नहीं है। मेहनत करेंगे तो ही ऊपर चढ़ के पत्ते एक निकालना है, हलाएंगे तो पत्ते नहीं गिरेंगे इधर, तो मेहनत करना पड़ेगा, वो दिमाग में रखो। तो आपका कितना साल, 5 साल हो गए ना गल्फ में? तो जब आप आपके अब जर्नी में देखते हो, ठीक है, तो आपको क्या होता है, ऐसे ड्रीम फील होता है या ओके क्या होता है आपको? मैं बताता हूँ। एक्चुअली जब मेरे पास, मैं पहले खाने के लिए बताया था 1 रियाल भी नहीं था। अच्छा। अभी आप मेरे वीडियोस देखे होंगे, कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, कतर की फेमस रेस्टोरेंट्स को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। जब भी मैं रेस्टोरेंट में प्रमोट करने के लिए कुछ खाता हूँ ना, मेरे आँख में पहले आंसू आता है। मेरे दिमाग में वो ख्याल आता है कि मेरे पास 1 कतर रियाल नहीं था और कोई मुझे हेल्प भी नहीं कर रहा था खाने के लिए। आज लोग मुझे बुला रहे हैं वही खाना प्रमोट करने के लिए। वाह, वो तो बहुत अच्छा हो गया। तो आप कैसे गए, ये कंटेंट आपका वो कैसे आया आपको? कंटेंट की वजह ये है कि थोड़ा सा टिकटॉक पे वायरल होने से क्या हुआ, थोड़ा वायरल होने में पब्लिक को ये मालूम हुआ कि बंदा अच्छा है, इसके थ्रू अपना भी प्रमोशन हो जाएगा, ये कुछ हेल्प करेगा। तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं कॉन्टैक्ट्स मेरे पास। कॉन्टैक्ट ये लोग करने की वजह ये है, टिकटॉक है ना, तो वो लोग टिकटॉक में मैसेज करते हैं, नेहाल, कभी सार बोलता है, कोई नेहाल बोलता है, मेरा सो एंड सो होटल है, मेरा सो एंड सो रेस्टोरेंट है, अच्छा, इवन शॉप्स भी है, बस आप आइए, एक वीडियो बनाइए। तो अभी का ये जनरेशन में व्हाट डू यू थिंक, जॉब इज इम्पोर्टेंट या कंटेंट में ही सी जॉब इज़ इम्पोर्टेंट। हम कतर में क्यों हैं? जॉब, पैसा कमाने के लिए। पैसा कैसा मिलेगा? जॉब से। कंटेंट ये इसलिए कर रहा हूँ कि
आफ्टर द जॉब अपनी लाइफ कभी भी याद रखो, गल्फ को आने के बाद या कोई भी कंट्री जाने के बाद, रूम टू ऑफिस नेवर डू दिस। रूम में और ऑफिस में ही रहोगे तो लाइफ बर्बाद होगी, डिप्रेस हो जाओगे। अपने आप को बाहर लाओ, कंटेंट्स ढूंढो। कंटेंट्स ढूंढने से क्या होता है, तुम्हारा लाइफ ऑफिस में भी अच्छा रहेगा, रूम में भी अच्छा रहेगा, और बाहर 1 घंटा एटलीस्ट 1 आवर अपने लिए निकालो बाहर, मस्त लाइफ रहेगा। अच्छा अच्छा, आपने तो बहुत अच्छे तरीक़े से एक्सप्लेन किया। Thank you. तो आप ये बताओ, व्हेन यू कंप्लीटेड योर मास्टर्स, आपने मास्टर्स किया हुआ था, ठीक है, तो कतार वाज योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू कम, या आप भी दूसरे लोग की तरह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस ढूंढ रहे थे? My first priority was I want to stay in India with my parents. I want to work there only. But some situations, थोड़ा सिचुएशन ऐसा आया कि मुझे आना पड़ा, क्योंकि उधर कमाने से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था मुझे, कि मुझे मेरा ग्रोथ नहीं दिखा उधर, टू बी ऑनेस्ट। इसके लिए मैं इधर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आने के बाद भी 2 महीने के बाद सोचा इधर भी मेरा ग्रोथ नहीं है, पूरा ज़ीरो ही होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है और सबकी दुआ है, जो भी हूँ ऐसा हूँ। आपने बोला था लाइक व्हेन यू वेंट बैक टू योर होम कंट्री, तो आप लोग ने बोला था ये तो बहुत बड़े बड़े बात करता था, देन ये एंड वो। अब जब व्हेन यू गो बैक टू योर कंट्री, लाइक व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू हियर फ्रॉम देम? अभी वही लोग मैसेज कर रहे हैं, जब भी वापस आ रहा है, मेरे लिए बैट लाओ, मेरे लिए परफ्यूम लाओ, मेरे लिए कपड़ा लाओ, मेरे लिए ये लाओ, वही लोग मैसेज कर रहे हैं। बट अभी मैं वो लोग के मैसेज को इग्नोर करता हूँ। इग्नोर करते हो? क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ, जो मेरे साथ अच्छा करता है ना इधर रखता हूँ, जो बुरा करता है ना निकाल के फेंकता हूँ। अच्छा, मेरी हैबिट। ओके, सो बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। ऑब्वियसली बहुत वर्थ इट था। थैंक यू सो मच आप आए। आपका स्टोरी बहुत मोटिवेटिंग है। लाइक यू नो मेनी पीपल्स विल गेट मोटिवेटेड बाय यू नो सीइंग दिस वीडियो। एंड ऑल्सो आपने बहुत अच्छा फैक्ट बोला, विच इज़ लाइक वी नीड टू हैव एक्सपीरियंस बिफोर गोइंग टू एनी अदर कंट्री इंटरनेशनली, बिकॉज even though if you don't have the experience of your own like of internationally, but you have the experience from your country. Yes, so that is very at important. least for 1 year. Yeah, at least from 1 year. कुछ तो आना चाहिए। आने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं इधर कुछ सिस्टम नॉलेज नहीं है, मैं आके इधर जॉब करेगा। मास्टर्स है मतलब इट्स जस्ट ए डिग्री। बस एक डिग्री लेके आगे मेरे पास डिग्री है मतलब जॉब कोई नहीं देगा। टेक्निकल राउंड होगा इंटरव्यू में, जब क्या करोगे उधर ही फेल हो जाओगे आप इंटरव्यू। नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए। क्यों? ओके, वन क्वेश्चन, क्योंकि आपने इतने सारे इंटरव्यू दिए, तो व्हाट डू यू थिंक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द इंटरव्यू? क्या मैटर करता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द इंटरव्यू। और मैं लास्ट एक बात बोलना चाहता हूँ, फ्रेंडशिप गल्फ में हो या किधर भी रहो आप, फ्रेंडशिप इज़ इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स की चॉइस, मेरे 2-4 फ्रेंड्स ऐसे हैं, मैं नाम लेके बताना चाहता हूँ थोड़ा वीडियो और बड़ा करने के लिए। और इसमें एक है मोहम्मद जाबिर, वो मेरे कंट्री से, ये मेरे घर के पास के ये उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इधर। अच्छा। और कुछ भी फैसला मैं लेना चाहता हूँ, कुछ भी मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ, तो पहला प्रायोरिटी गल्फ में, कतर में मैं उनको देता हूँ। उनसे पूछता था क्वेश्चन करके मैं क्या करूँ। इवन व्हेन मैं नया, आपने पूछा था ना आप नए थे, फ्रेंड्स कोई हेल्प नहीं किया क्या? अच्छा। मैं बस रूम में ही रहता था, तो उन्होंने मुझे गल्फ में इधर कतर में बाहर निकाला, रूम से बाहर निकाल के ये सारा जो कंटेंट ढूंढा है, जो भी मैं अभी कर रहा हूँ, सब उनकी वजह से। उसके बाद और मोहम्मद खलील पप्पा करके कतर में ही मिले, आके रिलेटिव भी बन गए मेरे इधर आने के बाद। अच्छा। मिला एज ए फ्रेंडली, बन गए रिलेटिव अल्हम्दुलिल्लाह। नासर भाई, हमारे जाबिर भाई तो ऑलरेडी बोल दिया हूँ, दादा भाई इब्राहिम करके एक है, ये लोग मुझे बहुत हेल्प करें। और मिस्टर नासर की मैं बात करना चाहता हूँ लास्ट पॉइंट, कि रिसेंटली उन्होंने मुझे एक अच्छी सी टिप दी। मेरे पास एक थोड़ा गंदा एटीट्यूड था, मतलब गुस्सा जल्दी कभी कभी आ जाता था। उन्होंने ये बताया, नेहाल कभी भी तुम्हें गुस्सा आता है, अगर रूम में हो, ऑफिस में हो, रूम में हो, बाहर जाओ, चाय पियो, वापस आओ, ऑफिस में हो फिर भी बाहर जाओ, वापस आओ, पानी पी लो, बट गुस्से में कभी कुछ मत बोलो। कुछ भी अगर ऑन द स्पॉट बोल दिया ना, इमेज ख़राब हो जाएगा। एक ऐसा ही बहुत हेल्पफुल बातें उन्होंने सिखाई हैं मुझे, उन्होंने भी। सो थैंकफुल हूँ मैं इन सबका, और मैं यही विश करता हूँ कि सबके पास ऐसे फ्रेंड्स मिले। थैंक यू सो मच। और मेरे फैमिली को भी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मैं जो भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच नेहाल, थैंक यू।